देश में पहली बार 25 साल 30 साल के बाद एक ही पार्टी को बहुमत मिलना, ये सचमुच में मेजर अचीवमेंट है। बीजेपी ऑन इट्स ओन गेटिंग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट आफ्टर अ गैप ऑफ 30 years itself is a unique in the history of India, and then we are all happy about it. And then you have a leader who is not only recognized within India but also internationally. Everywhere now it is Modi, 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 Modi. People are all, whether our opponents, हमारा जो विपक्ष है ना, वो लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, पच नहीं पा रहे। हम लोग क्या करें? उनको केवल शुभकामना दे सकते, शांति दे सकते मन के लिए, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएंगे हम। कारण क्या, इन्होंने 50 साल राज किया। They have ruled the country for 50 years and ruined the country in every walk of life. They have divided people into minority and majority. They have divided the people into minority and majority. They created psychological barriers. Or then they created regional difference also. Caste, creed, sex, religion and region, whatever is possible, they try to encourage such tendencies for short-term political gains. And some of these parties, which also are thriving on the basis of caste, whichever party it is in Uttar Pradesh, in Bihar, you know, some of the casteist parties, communal parties, they call us communal. They have friendship with the Muslim League. They have alliance with the Muslim League. They have alliance with All India Majlis Ittihad Muslimin. And they call us communal. We believe in one country. We are one nation. We are one people. Irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one. That is the confidence of the BJP. That is the ideology of the BJP. And they call us communal. They call us communal. And we are also fortunate to have a president who is dynamic and who has got clarity of vision. And then who also have the discipline and also the devotion to devote time and go around the country. इतना कम समय में पूरा देश इन्होंने एक राउंड कवर कर दिया अमित शाह जी ने। मैं क्या, वो अमित शाह जी अभी कहते हैं is the 10th president of the BJP, if I am right. Is the 10th president of the BJP and most successful president of the Bharatiya Janata Party. So we are fortunate to have Narendra Bhai as the Prime Minister, then Amit Bhai as the President of the party. Party is safe and secure, country also is safe and secure. And people are happy. I have seen the other day in Bangalore. Bangalore में अभी हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हुआ, उस समय जो आम सभा हुआ, मैं आम सभा देखते रहा, 1980 से देखते रहा हूँ वहाँ उसी ग्राउंड में 1980 से। अटल जी के साथ मैंने भी उस समय भाषण किया प्रदेश अध्यक्ष के नाते। उतना रिस्पांस और रिस्पांस जो जितना चुनाव में था उस समय के जितना आकर्षण था प्रधानमंत्री, अभी भी उतनी मात्रा में आकर्षण है नरेंद्र भाई मोदी जी का, बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर, कैलिबर, कैपेसिटी एंड कॉन्डक्ट, डिसिप्लिन, डायनेमिज्म, डेडिकेशन, डिवोशन. That is the greatness of our Prime Minister. He is really a God gift to the country. He is really a God gift to the country. And I'll come back to the last point as I made in the beginning. Some of our opposition friends are not able to digest it. But they have to bear with this for 5 years, maybe 10 years, maybe 15 years. 15 साल उनको वेट करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है. मेरा सलाह इतना ही उन लोगों को, अरे भाई हम लोग 50 साल विपक्ष में बैठे, 50 साल विपक्ष में बैठे, बहुत बार जेल गए, आंदोलन गए, घायल हो गया, मार खाया, बहुत बार हार गए, बहुत बार हार गए, हारना ही होते रहता है उस समय, और जीत कर यहाँ तक आया. कम से कम 5 साल थोड़ा सा देखो ना, हैव पेशेंस. फर्स्ट डे से आंदोलन करना, पहले दिन से आंदोलन करना, ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. अरे कम हम आके केवल 9 महीने हो गया, 9 महीने का बच्चा थोड़ा चलना शुरू किया करते, मगर हम चलना नहीं, दौड़ना शुरू किया सरकार ने. बच्चा चलना शुरू करते बल्कि सरकार दिन रात, द वे द प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग डे एंड नाइट, द वे द पार्टी प्रेसिडेंट इज वर्किंग, द वे एंटायर पार्टी मिनिस्टर इज वर्किंग. We have to take the message of good governance and development to the people and expose this opposition. Some of these parties, particularly Congress and the left, they are not able to digest our victory and their defeat. And then there are also other problems. There are some ideological opponents to us. They are waiting for an opportunity. वो अवकाश के लिए इंतजार कर रहे थे. दिल्ली में चुनाव हो गया, उनको एक अवकाश मिला, फिर कहने लगे ये क्या है, वो ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, ऐसा करके फिर हमारा आलोचना करना शुरू किया, हर एक विषय को गलत तरीक़ा से लोगों के सामने रखने के लिए. हर एक विषय में मुझे मन में दुख भी हो रहा है. कल जो चीफ जस्टिस का कॉन्फ्रेंस हुआ, वो जुडिशरी का मामला है, हम बोलते नहीं, मगर मुझे पढ़ के मन में पीड़ा हुआ.
उसको भी सेक्युलरिज्म के साथ जोड़ा लोगों ने। गुड फ्राइडे मीटिंग है तो सरकार का नहीं, मीटिंग चीफ जस्टिस का है, चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस है, पहले निर्धारित है। इसके पहले भी गुड फ्राइडे के दिन में चीफ जस्टिस का कॉन्फ्रेंस हो चुका है। केटी थॉमस जी ने, रिटायर्ड जज ने भी कहा भी है। मुझे उससे भी आश्चर्य, उसको सेक्युलरिज्म के साथ जोड़ना ठीक है। कुछ छुट्टी है तो, कोई पर्व है तो उस दिन घर में रहना और त्यौहार बनाना कोई आपत्ति नहीं, किसी को भी उनमें अपेक्षा होता है, मगर उसको सेक्युलरिज्म के साथ जोड़ना और उसको कुछ लोग सरकार के ऊपर हमला करने के लिए इसको भी कुछ लोग प्रयोग कर रहे हैं, बाहर का लोग, जजेस नहीं, कुछ बाहर का लोग। देखिए कितना ये लोग ऐसा प्रचार करते हैं। मैंने जानकारी ली है तो अमेरिका 94% क्रिश्चियंस, गुड फ्राइडे नो हॉलिडे। भारत में संक्रांति हमारा पर्व दिन है, कोर्ट काम करते रहते। विनायक चौथी पर्व दिन है, कोर्ट काम करते रहते। हमारा इलाका में उगादी चैत्र शुद्ध पाड्यमी, वो नया वर्ष मनाते हम लोग। आंध्र में, कर्नाटक में, बहुत इलाका में मेरे ख्याल से गुड़ी पड़वा है, कुछ कोर्ट काम करते रहते। किसी को कोई आपत्ति नहीं, किसी ने आपत्ति उठाया नहीं। मगर ऐसी हर एक विषय में सरकार को कहीं ना कहीं इसको नेगेटिव पिक्चर में दिखाने के लिए कुछ कोशिश चल रही है। सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। कोई भी हो गया तो फिर हंगामा शुरू करना। इसलिए कार्यकर्ताओं से मेरा अपील है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भी प्रस्ताव पारित किया, हम लोग इफेक्टिव होके सरकार का कामकाज नीचे तक ले जाना। और सेकेंडरी जनता का कुछ समस्या है, उनका जो भी प्रॉब्लम्स है वो सरकार तक पहुंचाना। ये और जो विपक्ष हमारा खिलाफ जो बोल रहा है उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट इफेक्टिवली देना, ये बहुत जरूरी है। आज स्थापना दिन के अवसर पर हम सब लोग उसी दिशा में हम लोग कटिबद्ध होकर आगे बढ़ना है। एक छोटा सा प्रॉब्लम है हमारा पार्टी में, कांग्रेस वाले 10 वादा किया, केवल 2 ही निभाया। हर एक कार्यकर्ता बताएंगे वो दोनों के बारे में। बैंक नेशनलाइज किया सर, प्रीवी पर से अबालिश किया, अरे इससे सामान्य जनता को क्या मिला सोचते नहीं, वही बोलते ऊपर से लेकर नीचे तक। हमारा मेंटालिटी क्या है, हम 10 वादा करते, उसमें 7 पूरा करते कम समय में। हमारा कार्यकर्ता हमारा समझ, सर बचा हुआ 3 है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है सर। इसका कारण क्या है, हम 50 साल विपक्ष में रहा। थोड़ा वो विपक्ष का मेंटालिटी से बाहर आना और पॉजिटिवली जो सरकार काम कर रहे हैं, जो अच्छा कदम उठा रहे हैं, मैं उसको गिनना नहीं चाहता हूँ, समय भी नहीं लेना चाहता हूँ। मुख्य रूप में हम लोग हमारा अध्यक्ष जी को सुनना है। तो मेरा कहना यह है, जो पॉजिटिव चीज़ सरकार ने इतना कम समय में किया, रिकॉर्ड टाइम पे किया, उन विषयों के बारे में जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए और जनता का समस्याओं को सरकार तक वापस लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और हम इतना व्यापक हो गए, अंडमान गया, अरुणाचल प्रदेश गया, कन्याकुमारी गया, कश्मीर गया, फिर भी बहुत इलाका में हम अभी भी पहुंचना है। इसके लिए सामाजिक तौर पर और राजनीतिक स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर सोच के उन इलाका में भी, दक्षिण में, पूर्व में, पूर्वोत्तर में और गरीबी इलाका में पहुंचना चाहिए। गरीबी इलाका में भी हमारा संख्या ज़्यादा है, मगर फिर भी जाना चाहिए। तंवरचंद जी बैठे यहाँ, शेड्यूल कास्ट एमपीज हाईएस्ट नंबर बीजेपी में है। पार्लियामेंट में हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट एमपीज भारतीय जनता पार्टी में है। दलित शेड्यूल ट्राइब, हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब एमपीज भारतीय जनता पार्टी में है। हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एमएलएस विधायक भी देश में मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी में है। हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन एमपीज भारतीय जनता पार्टी में है। हाईएस्ट नंबर ऑफ ओबीसी बैकवर्ड क्लास एमपीज भारतीय जनता पार्टी में है। हाईएस्ट नंबर ऑफ किसान एमपीज भारतीय जनता पार्टी में है। मगर ये पर्याप्त नहीं है, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी होना चाहिए। हम सब लोग सब इलाके में पहुंचना चाहिए। इसके लिए हम सब लोग आज एक प्रतिज्ञा लेकर पार्टी को और आगे बढ़ाना और आम आदमी तक पहुंचने के लिए पूरा प्रयास करना, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और एक बार मैं आप सबको इस अवसर पर शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। देश को सशक्त न्यायपालिका चाहिए कि समर्थ न्यायपालिका चाहिए? पावरफुल जुडिशरी चाहिए कि परफेक्ट जुडिशरी चाहिए?